Right? You're watching The Inside Story. My name is Rajiv Bajaj and we are coming to you live from the studios of Lemon News. That's right. मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB. आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी और चैनल का नाम है लेमन न्यूज. सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस और हेडलाइंस के बाद हम बात करेंगे NACL स्कैम के बारे में. जी हाँ, perhaps one of the biggest scams ever to hit any of the new exchanges that have been formed, and everybody's wondering when are they going to get their money back. आखिरकार लोगों को पैसे कब वापस मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे. सराफ साहब हमारे साथ थे 2 दिन पहले. वो तो बड़ी उम्मीद लगा करके बैठे थे कि उनके पैसे जरूर उनको वापस मिल जाएंगे, but I am not so sure. We'll talk about that. We'll also talk about the BHEL scam with regard to Bhutan and elsewhere, and the other power scam as well. And we will also talk about Mr. Narendra Modi's visit to Sydney. That's right. Now, as far as the Prime Minister is concerned, he seems to be creating a huge rock star impression all over the world. Wherever he's going, the entire Indian community is welcoming him. जितने भी भारतीय मूल के जितने भी लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, हर कोई नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा है, नरेंद्र मोदी के भजन गा रहा है. लेकिन इससे क्या असल में देश का फायदा हो रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. हाँ, इतना जरूर है, आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने इस किस्म की देश के लिए कैंपेनिंग नहीं करी है. और आधुनिक युग में 21वीं सदी के साधनों को इस्तेमाल करते हुए भारत की छवि को इस प्रकार पेश करना मुझे लगता है काबिले तारीफ है. उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. एंड ऑफ कोर्स वी विल आल्सो टॉक अबाउट द डीम्ड कन्वेंस स्कैम. That scam, by the way, is even bigger than we thought it was. It's huge. It's humongous. It is bigger than the 2G scam. यानी 2G scam में जहां पर 1,73,000 करोड़ की बात हो रही थी, ये जो कोऑपरेटिव सहकार स्कैम है वो तो शायद उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है. इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लें अब तक की खास खबरें. एंड इन द मीन टाइम, बिफोर वी लुक एट द हेडलाइंस, do send in your mails on insidestory@lemonnews.com. That's insidestory@lemonnews.com. But first, the headlines. भारतीय रेलवे में 100% होगा विदेशी पूंजी निवेश. ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान. सलमान खुर्शीद ने उठाया मोदी की रैली में भीड़ पर सवाल. कहा, विदेश में पीएम मोदी के कार्यक्रमों में जुटी भीड़ कितनी असली. बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि आज. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए बाला साहेब ठाकरे को दी श्रद्धांजलि. फर्जी मुठभेड़ों में गुजरात सरकार का हाथ नहीं. HS बेदी कमेटी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का खुलासा. और राजनीति में रजनीकांत की दिलचस्पी. सुपरस्टार रजनीकांत ने कहा कि भगवान ने चाहा तो वो राजनीति में आकर लोगों की करेंगे सेवा. Right. And we are of course going to start with the NACL scam. जहां तक NACL scam का प्रश्न है, इतना बड़ा स्कैम शायद किसी स्टॉक एक्सचेंज में इस कदर नहीं हुआ है. Where the exchange itself is involved in the scam. अब तक जितने भी स्कैम हुए थे, जैसे भाई हर्षद मेहता को ले लीजिए, केतन पारेख को ले लीजिए, the exchange itself is not involved. At the moment with us to discuss the same thing, of course, we have activist advocate Pradeep Nambiar, and of course we also have Professor Iyer with us. But first, Pradeep, जहां तक के NACL स्कैम का प्रश्न है, NACL स्कैम में यूनिक चीज ये है that the exchange itself had been constructed only for the purposes of this scam. That's the way it seems. Pradeep. Exactly, sir. As we were discussing, this is probably the only time where the entire exchange and the people, the corridors of power, people associated, like FMC, everybody involved in this scam with the ultimate purpose of committing a fraudulent act on the investors. Right, I'll tell you what. Lost the money are the investors. I'll tell you what, Pradeep, I'll have to stop you right there. I'll have to stop you. Just 1 minute, we'll come back to you. At the moment with us, we have Mr. Arun Dalmia. Also in the forefront of trying to get the money of people back
as far as the NACL scam is concerned. Mr. Dalmia, very good evening to you. Very, very good evening. This is Rajiv K. Bajaj from the Inside Story on Lemon News. Thank you so much, sir, for joining us. अरुण डालमिया जी, अभी आप ये बताएं कि जहां तक हाँ, के NACL स्कैम का प्रश्न है, हाँ, आपके मुताबिक क्या हाँ, अभी उम्मीद है आपको कि लोगों के पैसे अब वापस मिल जाएंगे जिस प्रकार अभी केस चल रहा है? सर बताएं। सबसे पहले मैं इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जी क्योंकि जो स्कैम अगस्त में जब खुला, जी उसी समय यदि भारत सरकार, यूपीए गवर्नमेंट जी इसको बहुत सीरियसली लेती, जी इसके लिए हमारे जितने भी इन्वेस्टर हैं वो मिल के मायाराम जी से मिलने गए थे, जी लेकिन उनसे जो रिस्पांस मिला था वो इतना नेगेटिव था, जी जैसे कि हमने कोई पैसे के लालच में या जी। ब्याज के लालच में ये पैसा लगा दिया है, जी जबकि हमको सिर्फ 1 या 2% एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा था बैंकों से, जी 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 उसके अलावा कहीं कुछ नहीं था। जी वो हम लोग को बहुत ही बेइज्जत करके वहां से निकाला गया। जी और उससे ये समझ में आया कि पूरी सरकार, यूपीए गवर्नमेंट, फाइनेंस सेक्रेटरी सारे जी। जिग्नेश शाह के साथ मिले हुए हैं। राइट हमने ये भी बताया कि भाई इस स्कीम में एमएमटीसी एंड पीसी ने भी पैसा डाला है, दैट्स राइट और आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परमिशन से जितने भी उनको क्लियरिंग हाउसेज दिए गए हैं, जी 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 वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे कि नाफेड उसके पार्टनर है। दैट्स राइट उसके अलावा वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे कि दे आर द मोस्ट, एनएससी नाम इसलिए रखा जिससे लोग कंफ्यूज हो जाए। जी तो ये सारे एडवर्टीजमेंट होना, और कोई भी रेगुलेटर, कोई भी एक्सचेंज चल रहा है तो यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बेसिस पे चल रहा है। जी आज पुअर इन्वेस्टर यदि कोई चीज का एडवर्टीजमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट का नाम आ रहा है, तो वो बार बार ये देखने नहीं जाएगा कि ये सब सही है या गलत है। जी दुरुस्त बात। जब एमएमटीसी और पीसी जैसे लोगों ने पैसे लगा और दिए, नेफेड पार्टनर है, सबसे बड़ी और बात नेफेड पार्टनर जी हाँ है, बिल्कुल उसमें ये नहीं बताया कि 1% है कि 99% है, जी तो उसको देख के लोग गलत फहमी में आकर दुरुस्त बात है। किया। लेकिन बाद में हमारे कैप्टन शाह और बाकी लोगों ने मिलकर जी ये गवर्नमेंट से मिले, उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझा, जी और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एफटी से जी वो बार बार ये बताने की चेष्टा कर रहे थे, एफटी पुरानी यानी गवर्नमेंट, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो जो है, जिग्नेश शाह साहब की उनका- जो कंपनी है। जी हाँ। जिग्नेश शाह की जो कंपनी है, जी हाँ। जिसके अंदर में मैक्सिमम शेयर जी। जिग्नेश शाह के हैं या फाइनेंशियल बाहर के फंड मैनेजर के हैं, जी जी फंड जी वालों के हैं, जी हाँ या उसमें जी शिपिंग के शेयर हैं, जी और थोड़े से शेयर जो है पब्लिक के हैं, जिन्होंने मैक्सिमम बेनिफिट खाया। जितना भी एफटी का मैक्सिमम जी। प्रॉफिट था, जो स्कैम एनएससी में हुआ, जी एनएससीएल में हुआ, उसका बेनिफिट उन्होंने खाया। जी और किसका मतलब ये हुआ कि कल को टाटा या रिलायंस या बड़ी कंपनियां अपनी कोई सब्सिडरी या पावर कंपनी खोलती है और जी हाँ। पब्लिक उसमें पैसा लगाती है, जी कल उसमें फ्रॉड हो जाता है, जी तो वो हाथ जोड़ के भाग जाएंगे। जी तो यदि मैं मालिक हूँ, यदि जी। मेन कंपनी है, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जी आज के रिजर्व बैंक ने कहा कि आपकी सब्सिडरी कंपनी भी जी यदि उसमें डिफॉल्ट करती है बैंक में, तो सारी कंपनी के ऊपर, मेन कंपनी से लेकर सब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जी उसको FTA लायबिलिटी declare किया सबकी जाता है। जी कानून ये है, सबकी है। लायबिलिटी सबकी है। दुरुस्त बात है। नहीं, लायबिलिटी कानूनी नहीं, जी। बेसिक है कि यदि मैंने कोई मेन कंपनी खोल दी और दूसरी कंपनी खोल के उसमें फ्रॉड का बिजनेस कर रहा हूँ, जी हाँ और कल वो फ्रॉड पकड़ा जाए, तो जो मालिक है जिसने मेन खोली थी, जी वो कंपनी, और वो तो बोले हमारा क्या लेना देना है, Correct. ये मेरी सब्सिडरी है। जी तो ऐसी सब्सिडी को पहले तो खोलना बंद कर देना चाहिए। जी और यदि उसने खोल दी है, यदि टाटा के पास में 10% शेयर है, जी। और टाटा मालिक बने हुए, रतन टाटा जी और उनके फैमिली मालिक बनी हुई है, जी तो क्यों बनी हुई है? तो इनके 99% शेयर है, जी तो रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं है? राइट टाटा फाइनेंस में भी फ्रॉड हुआ था, जी लेकिन टाटा ने उसको पैसा कबूल किया, पैसे दिए। बिरला Correct. फाइनेंस में भी हुआ था, उन्होंने भी पैसे दिए। दुरुस्त बात है। और ये गवर्नमेंट का सपोर्ट लेके, आईएएस ऑफिसरों का सपोर्ट लेके, पुरानी गवर्नमेंट सपोर्ट लेके ये फ्रॉड करते रहे और लोगों के पैसे भगाते रहे। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो रुपये इनकी कंपनी से गए, 5,600 करोड़ रुपया गए, जी
जिन्होंने उन कंपनियों को दिया है जी। जो कंपनी 1 साल पहले बनी, करेक्ट। देने के 1 साल 1.5 साल पहले बनी, जिसकी पेडअप कैपिटल 2 लाख 5 लाख नहीं है, जो बिल्डर है जी। उनको क्रॉप में पैसा दे दिया। और प्रोप्राइटरी किसी को भी कंपनीज हैं, रुपया- और तो और छोड़ दीजिए, प्रोप्राइटरी कंसर्न भी हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, और तो और और छोड़िए उसके बाद जी। उसके अलावा जो पैसा दिया उन्होंने जी। उसका ड्यू डिलिजेंस नहीं किया। करेक्ट। कुछ कंपनियों को तो दूसरी कंपनियों से भी पैसे दिला दिए गए। दैट्स राइट। जो आपके अहमदाबाद में जो कंपनी है, जी। जिनको 1000 करोड़ रुपए दे दिया, उनके चेयरमैन के रिलेटिव पे कंपनी है, जी। जिसका पहले भी सरफेसी हो चुका, जी। वो दिवालिया घोषित कर चुके, जी। उसको निकाल के लेके आ रहे हैं। जी। वो साढ़े 5,600 करोड़ रुपए जो भी रुपया निकाला, जी। उसकी प्रॉपर्टी लोगों ने खरीद ली। जी। एक दिन भी चेष्टा नहीं की जिग्नेश शाह की कंपनी ने जी हाँ। कि उसको किसी हालत में केस करे, उसके ऊपर में लीगल एक्शन लेके वो प्रॉपर्टी इकट्ठी करे। नहीं, कुछ लेकिन भी जहां नहीं तक अभी किया। इस वक्त का जो प्रश्न है, आज की तारीख में जो वस्तुस्थिति आज है उसके मुताबिक, क्योंकि आज सरकार ने जरा उसमें इंटरेस्ट लिया है, दिलचस्पी ली है, जैसे कि लेनी चाहिए, और क्योंकि मायाराम जी का, आदरणीय सम्मानीय मायाराम जी जो हैं, जो आज तक जिग्नेश शाह जी को सपोर्ट करते रहे, उनका भी ट्रांसफर हो गया है, तो मुझे लगता है इसलिए उम्मीद की किरण जागी होगी बहुत लोगों में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी वस्तुस्थिति क्या है आज की तारीख में। क्या आपको लगता है कि अब जाकर के, क्योंकि इतनी प्रॉपर्टीज जो हैं उनको अटैच किया गया है, हो सकता है कि शायद ऑक्शन के बाद लोगों को पैसा मिलना शुरू हो? पक्का मिलेगा, क्योंकि एफटी की जो भी उसके पास में, उसके पास खुद की प्रॉपर्टी है, उसके जी। एक्सचेंजेज है, उसकी अपनी एक वैल्यू है, उसी को यदि गवर्नमेंट ले ले या जी। उसको सीज कर दे या उसको जिद कर दे कि सारे पैसे आपको चुकाने पड़ेंगे, जी हाँ। तो जग मरा के जहां जहां पैसे उन्होंने दिए थे जी। उसके गवर्नमेंट के पीछे जाएंगे और सच्ची बताएंगे कि इतना पैसा 2 नंबर में हमने लिया था इन लोगों से। राइट। किसी जी। का आज कोई भी आदमी किसी को 100 करोड़ रुपया दे रहा, बिना आगे देखा ना पीछे देखा, तो डेफिनेटली उन्होंने पैसे 2 नंबर से लेके यहाँ पे लिए हों या बाहर भेजे हों। जी। और जितना भी आप उनकी फ्लोरेंसिक ऑडिट एमसीएस की कराई थी, जी। उसमें 1000 करोड़ रुपए का लफड़ा निकला है। जी, ये 1000 करोड़ रुपए का तो सिर्फ एक ही निकला है जनाब। एक ही निकला बाकी है। जो बाकी हैं उनकी तो बात कीजिए। जो सबसे, मैं उसकी जो बात कर आपने रहा हूं, आपने जो आपने FT का जिस चीज का जिक्र forensic किया audit कराएंगे। जी, डालमिया जी, जिस चीज का आपने जिक्र किया कि भाई जो अहमदाबाद की कंपनी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, शंकरलाल गुरु जी, जिनके सन इन लॉ जो हैं नीलेश शाह, निमेश शाह जी जो हैं, उन्होंने 1000 करोड़ रुपए निकाल लिया। अब ये तो ऐसा हो गया कि जैसे मेरा सेविंग्स बैंक अकाउंट है उसमें से मैं 1000 करोड़ रुपए निकाल रहा हूं। सर यही नहीं, अभी जितने भी जिनके पास पैसे हैं जी। ये सरकार आई है तो थोड़ी उम्मीद बनी है, तो उन्होंने सब तो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे फिर रहे हैं। उन्होंने कहा 6 महीना खाली जेल तो जाना है, जी। वो 6 महीना जेल में जाएंगे। हिंदुस्तान सिस्टम है, 20 साल तक केस चलेगा, उनका आपके पोते को पैसे मिल जाएंगे। जी। तो हम जुडिशरी को भी ये बोल रहे हैं कि भैया इसको जल्दी जल्दी खत्म करें। प्रॉपर्टी सामने है, तुरंत गवर्नमेंट उनको प्रॉपर्टी छीने, जी। उन जितने प्रमोटर है उनको नंगा करे, उनके जी। कपड़े लत्ते ज्वेलरी जो खरीदी है उसको छीन ले, दुरुस्त बात और है। छीन के तुरंत लोगों 13,000 लोग हैं, जिसमें 100 लोग होंगे जिन्होंने 3 करोड़ से रुपया ज्यादा लगाए होंगे। जी। बाकी किसी के 50 लाख, किसी के 60 लाख। जी हाँ। उसमें आधे से ज्यादा लोग, 6,000 से अधिक लोग हैं जो रिटायर हो गए हैं, गरीब है, परेशान है, जिसके वजह से घर चल रहा था, वो सब बर्बाद हो गए हैं। जी। ये अकॉर्डिंग टू एफएमसी, अकॉर्डिंग टू दूसरी एजेंसी जो ऑफिशियली नहीं बोल पा रहे थे उस समय भी, कि ये स्कीम 2 महीने के अंदर में खत्म होके पैसे सबको मिल जाने चाहिए थे। उसी समय उनको लेकिन अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है, डालमिया जी आखिरी सवाल, और मैं चाहूंगा डालमिया जी जब भी आपके पास वक्त हो आप हमारे स्टूडियो में आए और जरूर आऊंगा मैं। विस्तार से हम लोग बात करेंगे। मैं फिलहाल आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरा फोन लेने के लिए आपने मंजूरी दी। नहीं, मैं बहुत ज्यादा आपका आभारी हूँ, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा है जी, मीडिया ही ऐसा है जो सब जगह सब लोगों के पास पहुंचेगा। उन्हीं के 13,000 लोगों की जान सब जी। जोखिम में है, और आप लोग के वजह से एक बहुत बड़ी उम्मीद बनी है। लेकिन आखिरी मीडिया सवाल, ने इतना उठाया है। हाँ। आखिरी सवाल आपसे, ये फिलहाल के लिए आखिरी सवाल, जब आप हमारे हाँ। सामने होंगे तो विस्तार से बात करेंगे। अभी जो वस्तुस्थिति है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जिस तरीके से चल रहा है आज की तारीख में, कई कुछ जगह पर हैं जहां पर प्रॉपर्टी की अटैचमेंट हुई है। 1 या 2 जगह पे 5 या 6 करोड़ रुपए दिया गया है।
लेकिन जो असल में ऑक्शन होनी चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल एक जगह है जहां पे मुझे मालूम है कि 100 या 150 करोड़ की प्रॉपर्टी वो अटैचमेंट हुई है उसकी, लेकिन उसकी ऑक्शन अभी तक नहीं हो रही है। मैं आपसे कारण जानना ये चाह है- रहा हूं कि भाई वो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वो जरा बताएं। इसीलिए नहीं हो रहा है जी ईओडब्ल्यू के पास जो भी कागज पहले आए थे पुरानी जी, सरकार जी, के जी, जी। गवर्नेंस में, हाँ जी, वो आधे अधूरे थे अच्छा, राइट और पूरे राइट, ओके कागज है ही नहीं। जी और जो कागज नोटिस दे के कागज ले लिए गए हैं वो ओरिजिनल कागज उनके पास नहीं है। जी खाली ये है कि ये प्रॉपर्टीज के नाम पे है, उनको ये भी नहीं मालूम नहीं है कि इसके ऊपर लोन लिया गया है, ये जी। पेपर कहाँ और छुपा रखे हैं। जी ओरिजिनल पेपर है ही नहीं। यदि सरकार ईओडब्ल्यू चाहे तो 3 दिन के अंदर में उनको उल्टा लटका के सारे पेपर ले लें दैट्स राइट, और सच सच बताएंगे। मार के भूत हैं ये लोग। दैट्स राइट, मोहन इंडिया जैसी कंपनी जिसको 950 करोड़ रुपया दिया हुआ है, जी होटल चला रहे हैं, गाड़ियां गवर्नमेंट ने ईओडब्ल्यू ने सीज कर दी, जी। तो वैसी की वैसी बेंटली गाड़ी फिर ले आए। जी क्यों लेके आए? कि उनको सरकार का, कानून का, जुडिशरी का भय नहीं है। लेकिन वहां पर तो तो जय- चलिए थोड़ी देर के बाद जगमोहन जी भी हमारे साथ होंगे, जगमोहन गर्ग जी भी हमारे साथ होंगे। उनका तो ये कहना है कि भाई हमारी प्रॉपर्टी अटैच्ड है, आप ऑक्शन कीजिए, हम तो पैसे देने को तैयार है। ऐसा उनके ऐसा वो लोग बोल ऐसा रहे हैं। है कि पेपर ऐसा है, यही तो लोगों को उल्लू बना रहे हैं। हमारे प्रॉपर्टी अटैच है, जी। फिर हम जाके 2 वकील को खड़ा करके 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, 900 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच है, जी 20 करोड़ रुपया साल का लगेगा बड़े बड़े वकीलों को खड़ा करने का, जी और ऑब्जेक्शन करते रहेंगे। 90 करोड़ का यदि हम एक बैंक में भी जाते तो 70 करोड़ रुपया मिलता था। हम मजे जी। कर रहे हैं। अभी Right. उनके पास गाड़ियां, इतनी सारी गाड़ियां कहां से आ गई? यदि जिनकी नीयत साफ हो, जी जितनी नीयत साफ हो, उसमें खुद तो इन्वॉल्व नहीं है। उनमें जो वकील है जी उसने भी फ्रॉड किया है, जो उनका Right. वकील है। राइट, तो वो वकील भी ऐसे ढूंढ ढूंढ के रखे हैं जो उनके हर जुर्म में साथी हैं। right, but the only thing is, thank you so much Mr. Dalmia for talking to us. Yeah. And hopefully you'll be out here, you'll be here in the studio and we will carry this further. Definitely. We'll Whenever carry you this call further. me, I will come. Right, Definitely. I hope you'll have the time tomorrow so we can continue Yeah, with this tomorrow I will itself. come tomorrow. Thank you so much Mr. Dalmia. Thank you Thank very you. much. Thank you. Now Pradeep, you heard him. He says that even if the properties have been attached, देखिए साहब 900 करोड़ रुपए अगर किसी ने निकाल लिए हो, जैसा इन्होंने कहा कि जहां पे आपको 70 के 90 करोड़ रुपए का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है सालाना, अगर 900 करोड़ की आप एफडी भी कर दें, 70 के 90 करोड़ का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, 20 करोड़ का आप वकील खड़ा कर दीजिए, 20 करोड़ आप स्पेंड कर दीजिए केस के ऊपर ही, तो यू कैन कीप टेकिंग वन ऑब्जेक्शन आफ्टर द अदर, योर प्रॉपर्टी विल रिमेन एग्जैक्टली वेयर इट इज। प्रदीप, Exactly, sir. ये जो what Mr. Dalmia said is perfectly right. अभी ये जो 4000 5000 प्रॉपर्टीज इन्होंने अटैच किया, उसका वेराबाउट्स ऑथेंटिसिटी मालूम पड़ना पड़ेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इनके पास नहीं है, उनके पूरे कागजात नहीं है। दिस इज बीइंग चैलेंज्ड इन द कोर्ट्स आल्सो, एवरीथिंग लीगल रेमेडीज में भी गया। एवरी स्कैम के बाद आप देखो, it is not just that it's being challenged in the court. No. I'll tell you what's happening. It is not just that it is being challenged in the court. What is happening over here is, and our viewers must understand this, every single little instruction or direction given by the court is being challenged the next day in the same court. For example, if a document is sought, or if the court asks for a document, even that is being challenged in a higher court, as a result of which the entire case is being sought to be delayed as much as possible. That's what is happening. जो अभी डालमिया जी ने कहा कि भाई जो कोर्ट का प्रोसीजर है, आप हमारे पोते पर पोतों से आप पैसा लेते रहना, कहने का मतलब ये होगा कि 20 के 25 साल के बाद शायद आपको पैसे मिल जाएं। प्रदीप, सर 25 हमने जो इन्वेस्टिगेशंस लगातार यूसी सिटी लिमोजिन बिफोर द प्लांटेशन कंपनीज जितने भी लिक्विडेशन प्रोसेस में गए, अनफॉर्चुनेटली अब तक का इतिहास यही है कि लोगों के कुछ पैसे मिले नहीं। मुंबई में आप एयरपोर्ट के सामने वो जाल होटल जो अटैचमेंट में रहे, आज तक लिक्विडेशन हुआ नहीं, वो होटल सड़ गए। That's right. Nobody is inside. That Uday Acharya, if I remember correctly. Uday Acharya hotel is totally destroyed because it's not being utilized. It is attached. Most of the properties are like that. and that scam relates Justice to, and that scam goes back to 1996, 19 97, yes, if I'm yes, not yes. mistaken, right? Exactly, and you find that process is not yet over. People Right. are not getting the money. लोग आके थक गए, कोर्ट के धक्के काट कर छक गए, चप्पल घिस गए, पर पैसे नहीं मिला. And endless scams. Not only one. You talk about 20 to 25 major companies. 50. We were initially looking at the corporate fixed deposits, including Mr. Yash Birla.
People have lost or retired. जैसे दालमे जी ने कहा कि some people are HNIs, high net worth individuals, but most of the people are common people. जो गरीब से गरीब लोग जो रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिले हैं वो इसमें इन्वेस्ट किए with a hope. और सबसे बड़ी बात this will है, be और सबसे बड़ी फ्रॉडुलेंट चीज यहां पर क्या आती है, जो अभी डालमिया जी ने बताया, अरुण डालमिया जी ने जो सबसे बड़ी बात सामने बताई, क्योंकि नाम एनएसई है, लोगों को लगता है शायद ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए ब्रांच होगा, ये भूल गए कि दिस इज द नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड। ये अलग ही है सिस्टम, जहां पर पेयरिंग में ट्रेडिंग होती है और आर्बिट्राज में आप 12 से 15% कमाते हैं। कहने का मतलब यही हुआ, उसके लिए आपको अपने एक एक ट्रेड के ऊपर आपको नजर रखनी थी, लेकिन आप अपने ट्रेड के ऊपर अगर नजर भी रखें, कमोडिटीज के सामने अगर आपको लोन मिल रहा है या आपको आप कैश उठा रहे हैं जहां पर कमोडिटी है ही नहीं और आपने कैश उठा लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सचेंज के पास कुछ था ही नहीं। सो एज ए रिजल्ट ऑफ विच योर एंटायर इन्वेस्टमेंट वाज नॉट सिक्योर। कहने का मतलब यह हुआ। Exactly, sir. The original commodity exchanges है, उसी में we always have a doubt, a big question mark about variability of stocks कहाँ पर है? There's no stocks at all. Right, I tell you what. At the moment with us, Pradeep, at the moment with us, we've got Mr. Jagmohan Garg. Garg साहब नमस्कार। जगमोहन गर्ग जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, यही हकीकत है जी। गर्ग साहब आप ये बताएं, इस वक्त हमारे साथ है मोहन ग्रुप के जगमोहन गर्ग जी। जगमोहन गर्ग जी, इस वक्त वस्तुस्थिति क्या है? जहां तक आपका प्रश्न है, अभी शो के पहले जब हमारी आपसे बातचीत हुई थी, आपने कहा जहां तक आपके ग्रुप का सवाल है, आपको जरा भी किसी और का पैसा रखना नहीं है और जो भी आपकी प्रॉपर्टीज अटैच हैं वो जल्द से जल्द नीलाम करके सरकार सबको पैसे दे दे। जरा आप हमारे दर्शकों को बताएं जी। हमने तो पहले दिन ही दे दिए थे इनको, कोलेट्रल में भी दे दिए थे जी, और सारी इनको प्रॉपर्टी दे दी थी। उसके बाद हमने कहा हम बेच देते हैं, तो इन्होंने कहा नहीं हम ही बेचेंगे जी। तो अब ये अगर जो ऑक्शन करके बेचते तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जी। और इस वक्त आपकी कितनी प्रॉपर्टीज अटैच्ड हैं? हमने जो एनएससीएल से एग्रीमेंट किया था उनको इनफ प्रॉपर्टी दे दी थी हमने कोलेट्रल में उसी टाइम जी जी। जो हमने एग्रीमेंट किया था उसको कोलेट्रल से सिक्योर किया था हमने जी। एंड द कोलेट्रल वाज फॉर अबाउट 900 crores. Is that it? No, Is that what you we said? have the agreement of 736 crore. 736 crores. हाँ, जी। बिकॉज कुछ पैसे तो हमने उनको वापसी उनकी कंपनी में दूसरी में दे दिए थे ना, 771 का एग्रीमेंट था हमारा जी बाकी इन्होंने हैंडलिंग चार्ज लगा रखे थे जो थे ही नहीं वहाँ पे कुछ जी। क्योंकि अभी आपके सामने जो यहाँ पर फिगर आ रहा है वो तकरीबन 900 करोड़ के करीब का आ रहा है। ऐसा ना जी, वो तो हमारा रिकंसिलेशन होकर आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत एनएससीएल से एग्रीमेंट हुआ है जी। तो एग्रीमेंट के तहत हमने उनको जो पैसा देना सेटल हुआ हमारा आर्बिट्रेशन होके जी। तो आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत कंसोलिडेटर अपॉइंट हो गया और कोर्ट ने हमारा सारा कोर्ट में मैटर सारा लीगल, कोर्ट ने कहा कि एग्रीमेंट लीगल है सारा। तो ये जो बात करते रहते 878 करोड़ 900 करोड़, दैट इज बेसलेस थिंग्स। Alright, but in any event, as far as 737 crores is concerned, if that collateral already exists, now what is preventing the authorities from auctioning it? Now now let me say this for the benefit of our viewers. जिस प्रकार जगमोहन गर्ग जी ने अभी बात करी है, उन्होंने ये कहा कोर्ट से कि भाई गर्ग साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हम खुद बेच करके ये जो प्रॉपर्टी है हम खुद बेच करके पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन ये कहा गया अथॉरिटीज द्वारा कि भाई हम लोग बेचेंगे, इस वजह से शायद डिले हो रहा है जी। एनएससीएल नहीं बेचा, एनएससीएल नहीं कहा, एनएससीएल ने कहा कि हम खुद बेचेंगे। हाँ, जहां तक उन्होंने कोर्ट में परमिशन लगाई कि हमारे को बेचने की परमिशन दी जाए। हमने कहा भी नो ऑब्जेक्शन, आप परमिशन मांग क्यों रहे हो, हमने तो आपके नाम ऑलरेडी की हुई है। राइट, परमिशन मांग के उन्होंने 6 महीने का टाइम वेस्ट किया है जी। मतलब लेकिन अगर आज आपको परमिशन मिल जाए तो आज आपके पास बायर्स हैं क्या जो ये 736 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं आपको? नहीं, ऐसा है कि प्रॉपर्टी का काम उसको डेवलप करके हम, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी ले रखी थी डेवलप करने के लिए जी, तो हम तो इसको डेवलप करके बेच सकते हैं। हमको 6 महीने से साल भर का टाइम लगेगा अगर जो हम इस पे प्लॉटिंग काट के बेचेंगे तो। जी जी। क्योंकि आपके खिलाफ ये आरोप, आपके खिलाफ ये लग रहा है, जरा ध्यान से मेरी बात सुने, कि ये जो प्रॉपर्टी है, चलिए ठीक है अटैचमेंट हो गई और आपने भी पब्लिकली ये स्टेट किया है कि हम लोग पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन वास्तविकता में जो भी आपकी प्रॉपर्टी अटैच हुई है या जो कुछ भी हुआ है, क्योंकि लीगली आप इतने स्ट्रांग हैं, कानूनन आप इतने स्ट्रांग हैं, आप कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी देरी से देरी लगे इसमें, इसको ऑक्शन होने में। क्या ऐसी बात है गर्ग साहब? आप ये गलत बात कह रहे हो सर, क्योंकि हमने उनके नाम टाइटल डीड कर रखी है। दे कैन सेल इवन जिस दिन उनके नाम दी थी उसी दिन बेच सकते थे वो। जी गलत आरोप है जी, बेसलेस बात है सर ये जी। But as far as you are concerned, you are willing to pay the money back. Pradeep, would you like to ask any question? Please go ahead.
Of the 24 defaulters, only 2 defaulters have been paying the money regularly. This is what the investors and NSCL claim. आप अपने तरफ से कुछ पेमेंट वापस क्यों नहीं करते? और जितने प्रॉपर्टी आपने कहा कि आपने कंस्ट्रक्शन के लिए प्रॉपर्टी खरीदा हुआ है, तो डेफिनेटली अगर वो आप बिल्टअप करके पूरे बनाकर बेचोगे तो सालों साल लग जाएगा लोगों को पैसे मिलने में। नहीं, हमको बना के बेचना नहीं है, वो खाली प्लॉटिंग ही करके बेचना उसमें सिर्फ प्लॉटिंग करके बेचनी है, एंड दैट टेक्स बिटवीन 6 months to 1 year. बट इन टर्म्स ऑफ कैश पेमेंट, जहां तक कैश पेमेंट का प्रश्न है, क्या आपने अब तक कोई कैश लौटाया है? अब तक 60 करोड़ रुपए तो इनकम टैक्स में है, जो इनकम टैक्स का कोर्ट का ऑर्डर है वो इनकम टैक्स नहीं दे रहा। जी जी, ठीक है, इनकम टैक्स के कोर्ट के ऑर्डर है कि यू प्लीज पे बैक द मनी, और उस पर कोई स्टे नहीं है, फिर भी इनकम टैक्स नहीं दे रहा 60 करोड़ रुपए। यानी जहां तक 60 करोड़ का प्रश्न है जो इनकम टैक्स के पास है, जो आपको वापस मिलने हैं इनकम टैक्स से, हमको नहीं मिल रहे, जो एनएससीएल को मिलने हैं वो इनकम टैक्स नहीं दे रहा है। अब बट दैट ऑर्डर है वो, but that is an issue between the NSCL and income tax. That really does not concern us. But as far as you are concerned, on record, वो पैसा सारा इन्वेस्टर को ही जाना है जी, एनएससीएल को नहीं जाना वो पैसा, एनएससीएल के पास आएगा तो इन्वेस्टर के पास आएगा जी। लेकिन as far as you are concerned, I would like you to make this commitment again. और ईडी में जो प्रॉपर्टी हमारी अटैच की गई है जी, वो प्रॉपर्टी भी बेचने की परमिशन कोर्ट ने हमको दी, पर कोर्ट हाई कोर्ट में ईडी हाई कोर्ट में चला गया, वो भी प्रॉपर्टी नहीं बेचने दे रहा। तो पैसे जहाँ पे लगे हैं प्रॉपर्टी के, वो पैसे जब तक नहीं आएंगे तो पैसे कहाँ से दिए जाएंगे? जी, तो कहने का मतलब इनको प्रॉपर्टी दी एनएससीएल को, वो ये नहीं बेच रही, तो तीनों जगह स्टक्ड हो गए ना हम तो, एग्रीमेंट करके भी जी। और नेक्स्ट डे मेरे ईडी की रेड हुई है जी, पहले नहीं ईडी की रेड हुई, जब मैंने एग्रीमेंट किया तब हमने हर महीने 25 करोड़ रुपया देना था जी, और वो सारी प्रॉपर्टी डी ने अटैच कर दी हाईलाइट करके। और ये हमने 1 साल में प्रॉपर्टी बेचनी थी, सिविल लाइन की, हमारे को इन्होंने बेचने नहीं दी, तो इसलिए सारा ये मामला स्टक्ड है। और एनएससीएल यदि जिम्मेवारी लेता, अब वो भी अपने जैसे हमने उनको प्लेज किया ऐसे वो इन्वेस्टर फोरम को प्लेज कर देता अपनी इक्विटी, तो आज ये झगड़ा ही नहीं होता। लेकिन जगमोहन जी, आप कृपा करके ये बताएं गर्ग साहब कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि जहां आप तैयार हैं, नहीं पूरी बात डिपार्टमेंट का आपस में समन्वय नहीं होना, ये प्रॉब्लम है। सिर्फ यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? हाँ, यही प्रॉब्लम है खाली। एनएससीएल तो अपनी प्रॉपर्टी ऑक्शन करके नहीं बेचना चाहता जी, और ईडी प्रॉपर्टी छोड़ना नहीं चाहता, इनकम टैक्स पैसे देना नहीं चाहता। दीज आर दी ओनली रीजन। यदि आप हाईलाइट करना चाहते हैं, इन्वेस्टर जाना चाहते हैं, आई आल्सो मेट फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी, उनको भी मैंने कहा कि जी जब एक आदमी वॉलंटरी पैसे देना चाहता है तो उसकी प्रॉपर्टी छोड़ी जाए। Now, this is the most important point. एक आदमी, एक ग्रुप जो है वो वॉलंटरली आज पैसे देने को तैयार है, लेकिन एनएससीएल, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और अन्य जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनकम टैक्स, इन तीनों के बीच में क्योंकि समन्वय नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, इसकी वजह से वो करते नहीं जान, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स आर सफरिंग। नाउ दैट इज टेरिबल, दैट इज एब्सोल्युटली टेरिबल, राइट? सो ऑलराइट मिस्टर गर्ग, लेकिन जहां तक आपका खुद का प्रश्न है, आपने जब अरुण जेटली जी के सामने ये बात रखी तो आदरणीय वित्त मंत्री जी ने आपको क्या कहा? उनका मदद करेंगे और वो करने लग रहे हैं उधर कोशिश। ये लॉ चेंज करना पड़ेगा ईडी का, क्योंकि ईडी जिसको लग जाती है वो प्रॉपर्टी बेच ही नहीं सकते, राइट? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहां तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का प्रश्न है, इनकम टैक्स का प्रश्न है और एनएससीएल का प्रश्न है, जब तक ये तीनों लोग बैठ करके किसी निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे तब तक निवेशक जो हैं वो इसी तरीके से सफर करते रहेंगे। कहने का मतलब ये बिल्कुल एक्यूरेट बात है जी। Right, Mr. Garg, thank you so much for talking to us. Great pleasure talking to you, and thank you so much for making a commitment that you are willing to pay the entire amount back. Thank you so much. Thank you. ये थे मोहन ग्रुप के. Mohan Group has lots of interest in hotels and other things and luxury, lodges and other such stuff. And he says he is willing to pay the money back. Pradeep. सर 13,000 लोगों को पैसे वापस चलना चाहिए। ये कानूनी दावपेच बहुत सारे हो गए। I'll tell you, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग कुछ अटैच कर लेता है, फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अटैच कर लेता है। Then the court in one particular case, the court has asked Bombay High Court has asked the ED to hand over the property to EOW, and then they went to the court, higher court, and it was because. No, but that's exactly what has happened as far as the Mohan Group is concerned. Yes. Even as they were about to auction the property, their personal property has also been attached. Exactly. उनकी personal property जो है वो भी attach की गई है। उन्होंने कहा भाई हम बेचने को तैयार हैं, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हाई कोर्ट में जाकर के स्टे ले आए उसके ऊपर कि आप इसको बेच नहीं सकते। कहने का मतलब ये हुआ, now the way open is that all the investors will have to approach the high court or they will have to approach the Supreme Court, and by an order of the Supreme Court let an SIT be appointed. My point is the only answer to this is let a special investigation team be appointed or let
a special team be appointed under a sitting High Court judge who will direct the Enforcement Directorate, the Income Tax, the Economic Offences Wing and NSCL to sit down together and say, all right, give the money back, and this is how you do it. सर मेजर स्कैम्स जो आप देखोगे राइट फ्रॉम सिटी लिमोजिन, एम्स लिमोजिन, जो 50 कंपनी हम देख रहे हैं, every company is having a same problem where giving back the money to the people is concerned. Differences between EOW, Enforcement Directorate, CBI, अलग-अलग departments. And don't forget the income tax. Don't forget income tax. Income tax. All enforcement agencies, अलग-अलग कानून, and their appeal lies to their higher authorities. Right. Not to and the courts cannot. तो पूरे उनके law. Now this is where the government has to take a stand, because this is a multi-state operation. In case of multi-state, the kind of fraud that this particular thing has happened, what should be done? Now EOW is a local unit of the state of Maharashtra. Mumbai EOW attaches the property. But I tell you what. Enforcement Directorate comes and attaches the property. The solution to that is very, very simple. The finance minister himself can take a call and he can say, all right, you guys sit down together, come over here to North Block, you guys will sit down in front of me, I am passing an order, this is the way you will proceed. All the properties that you have attached, start auctioning them now. Start auctioning them now so that the money of the people can be returned, even if it is in small EMIs or small installments. At least some money can be restored to the people. That is the only way out. कहने का मतलब ये हुआ कि आदरणीय वित्त मंत्री जो हैं वो इन सब एजेंसीज को अपने पास बुलाएं. मोस्ट ऑफ द एजेंसीज आर अंडर हिम. भले इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग हो गई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया, इनकम टैक्स हो गया या एनएससीएल खुद हो गया. अगर ये चारों के चारों एजेंसी आकर के इनके सामने बैठ जाएं, आज की तारीख में आदरणीय वित्त मंत्री यानी श्री अरुण जेटली जी एक ऑर्डर पास कर सकते हैं, एक हुक्म जारी कर सकते हैं कि आप जितनी प्रॉपर्टीज अभी तक आपने अटैच करी हैं, एंड आई बिलीव दे हैव अटैच्ड प्रॉपर्टीज वर्थ समवेयर इन द 4,500 or 4,900 crores as per valuation on the books. What their real value is, we don't know as But yet. I'll tell you, sir, Right. what Mr. Dalmia has said has to be, उसको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, because Mr. Dalmia ने कहा कि जितने भी defaulters हैं, जिसके properties attach किए हुए हैं, उनके original documents, they're not cooperating with the law. That's what he says. Because you get different versions from different people. Now, who's going to give us the authentic statement? That is probably the Economic Offences Wing, Right. or the Enforcement Directorate who's attaching the properties. आखिरकार 13,000 लोगों को, निवेशकों को पैसे वापस मिलना पड़ेगा, देना पड़ेगा. इसमें सरकार को प्रोएक्टिव रोल करना पड़ेगा, प्रोएक्टिव रोल लेना पड़ेगा. ये इंटर डिपार्टमेंटल लफड़े और झगड़े में अगर निवेशकों को पैसा नहीं मिलता है, And I tell you what, I have the suspicion of 25 years. Now we've got to take a break. We got to take a break. When we come back, we'll talk about the BHEL scam, of course, and I promise we shall continue with the NSCL scam even tomorrow. But I have this distinct suspicion कि जहां पर enforcement directorate अगर high court में गया है, did someone inspire the enforcement directorate to do that? जहां तक कि इनकम टैक्स ने 60 करोड़ रुपए जो उनके पास पड़े हैं वो वापस निवेशकों को नहीं दिए, has someone inspired them to do that? That is something which needs to be investigated. After all, in criminal law, the only question you have to ask is who gains, who profits from this. The only people who profit from this are the people who are accused of cheating so many people. These are the only people who are profiting from this. यानी आपकी प्रॉपर्टी भले ही अटैच्ड हो, लेकिन फिर भी उसकी ऑक्शन नहीं हो रही है. So who's gaining? You are gaining. And we'll talk about this sometime tomorrow. But at the moment, we've got to take a break. When we come back, we will talk about the BHEL scam. With us, of course, will be our old friend, Professor A.G. Iyer. Don't go away. We'll leave you with the headlines. After the break, when we come back, we will talk about the biggest scam in the power sector. That is the Bhutan BHEL scam. That's after the break. भारतीय रेलवे में 100% होगा विदेशी पूंजी निवेश, ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान. सलमान खुर्शीद ने उठाया मोदी की रैली में भीड़ पर सवाल, कहा विदेश में पीएम मोदी के कार्यक्रमों में जुटी भीड़ कितनी असली. बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि आज. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए बाला साहेब ठाकरे को दी श्रद्धांजलि.
फर्जी मुठभेड़ों में गुजरात सरकार का हाथ नहीं, एचएस बेदी कमेटी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का खुलासा। और राजनीति में रजनीकांत की दिलचस्पी, सुपरस्टार रजनीकांत ने कहा कि भगवान ने चाहा तो वो राजनीति में आकर लोगों की करेंगे सेवा। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media.